So let us start. Let me introduce myself. Myself Ujjwal Ghosh, mathematics teacher of Chaivasha Engineering College. So I have got this news from your principal sir. He request me to take your classes. So I am coming here to take your classes, and we are making the screen sharing. Okay. So we are starting our class without hesitation. So at first, to make the trigonometry easier, you know that in your 10th level there was some trigonometry, there was the ratios of trigonometry was given there, and also some the values of acute triangle of our The sine. sound is not coming loudly. Sir, Now your it is okay to all of you. voice is around. Now my voice is coming to all of you. Okay, so at Yes, first we sir. will see for the measurement of the angle. Introduction is given. How one angle is measured, right? Angle means the rays. Two rays here, OA and OB. They are the two rays which are meeting at the O. Between this OA and OB, these are called the initial side and terminal side. Between these, this is called the angle. So this angle, there are two kind of the rotation of these rays. One is anti-clockwise, another is clockwise. If it is rotate anti-clockwise, then we can say that it is positive angle. When it is rotate is clockwise, rotation will be clockwise, then we can say that it is the negative angle, right? Do you have this idea for this? Do you have this idea? So what is the positive angle and what is the negative angle? Here OA is called the initial line. With respect to initial line, if the rays rotate in anti-clockwise, then the angle making between the OA and OB, that is called the positive angle. If it is rotate clockwise, then the angle is between OA and OB will be said that negative angle. So there are two kind of the rotation. According to this rotation, we are taking the angle as positive or negative, right? Now measure of angle. The measure of angle is the amount of the rotation from the initial side to the terminal side. Here this OA is the initial side and OB is the terminal side. So total rotation, if we say that this is the theta, then theta will be the angle which makes by initial line OA and OB. These are called the angle. The sense of an angle already I have said to you. The sense of angle is determined by the direction of the rotation of the actual angle side in the terminal side. The sense of an angle is said to be positive or negative according as the initial side rotates and anti-clockwise or clockwise. If it is anti-clockwise, then it is positive angle. If it is clockwise, then it is called the negative angle. Here the two figures are given. Positive angle means this. Here the OA initial line and OB, they are rotating with the anti-clockwise. So this angle theta is taken as the positive theta. But when OA and OB is rotate in the clockwise direction, then the angle between OA and OB is taken as minus theta. So as it is the clockwise, so we are taking the minus. This is the sense of the angle, right? How the measure of the angle, when it is clockwise direction, then we are taking that it is the positive angle. When it is anti-clockwise, then we are taking that positive, and clockwise is taking as negative angle, right? So this is the sense. Now right angle, if resolving say starting from its initial position to the final position, describe one quarter of an angle, then Morning, sir. morning, then we say that the measure of the angle formed as right angle. So some useful terms are given here. Right angle means we know that if the measurement of theta is positively is 90 degree, that is pi by 2, then we can say that the angle is the right angle. Now some useful terms, that quadrant. Quadrant, we know that in the reference frame XY, isn't it? We are taking the one x axis, another y axis, those who are the perpendicular to each other, and their
intersect at the point O, which is called the origin, right? For origin, if हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ऐसे सर हम लोगों से समझ में नहीं आएगा सर, थोड़ा थोड़ा हिंदी में बताते ना सर। People are not the Hindi speaking people and very poor in Hindi. It is my fault. I'll try to make up it. Okay. So just ओके try to सर, understand ऐसे that. सर ऐसे पार हो रहा है, Uh, समझ बट में सर नहीं ऐसे आएगा। में कुछ आ नहीं रहा। where you are getting the problem in language. No, यस सर। you have got the language is not properly. Actually, terminology is I am not the Hindi speaking people. सर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल रहे हैं, समझ में आएगा। Okay, okay, no issue. I'll try it. Right? As far as possible to me, I can try it. Because of that, here now देखो यहाँ पे जो clock means what is the meaning of clock in Hindi? नो सर, इट्स ओके, क्लॉकवाइज चलेगा सर। Okay, okay, okay. So if it is clockwise, then it is negative. If it is anti-clockwise, then it is positive. It is clear to everybody? Yes, sir. Okay, thank you. I'll try it, यस right? सर। This is one of my barriers. You can say that, and you can consider this from my side. I'll try to let us speak in Hindi. So हम लोग जानते हैं जो x एक्सिस एंड y एक्सिस है, दोनों मीट करते हैं origin पे, that is called O. So there are four initial. Look at here. Here x dash is called the x-axis, and y dash is called the y-axis. Their meet intersect. They are cutting at the point O. This O is called the origin. ठीक है? तो ये origin के जो काट हुआ है यहाँ पे चार पार्ट हुआ ना, 4 पार्ट हुआ. This is first one is called in right hand side quadrant 1. इसको बोलते हैं quadrant 2. It is quadrant 3. It is quadrant 4. If we take the angle is anti-clockwise, then it is positive 90 degree, then here it is positive 180 degree, then positive 270 degree, then 360 degree. यहाँ पे 90 डिग्री, then 180 डिग्री आगे आएगा, then 270 डिग्री आएगा, then 360 डिग्री, right? Now look at here, when we are making the angle, here OP and here also OP. This OP, that means here we are taking the anti-clockwise, then there is the angle. But here is another angle, that is POP dash actually, if we take that P dash, X dash. So in our trigonometric part, there यहाँ पे चार क्वाड्रेंट हो गया है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4. This is also called the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. जनरली हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज जब हम लोग लेंगे तब इसको पॉजिटिव एंगल समझ लेंगे. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का वेरिएशन क्या होगा, 0 से 90 डिग्री ना, यहाँ से यहाँ तक 0 to 90 डिग्री. सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री to 180 डिग्री. थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 डिग्री. फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 to 360 डिग्री. Right? These are the quadrant-wise angle when we are taking the positive direction, that is anti-clockwise direction. Look at here, angle in a quadrant. An angle is said to be a particular quadrant if terminal side of the angle in standard position lies in that quadrant. Here, look at here, this P, this small p, it is ये कहाँ कौन सा क्वाड्रेंट में है, कोई एक बोलो, ये P कौन क्वाड्रेंट में है? First quadrant. First quadrant, sir. बट ये P है सेकंड क्वाड्रेंट में ना. Yes, sir. में है. अगर यहाँ पे कोई लेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे कोई होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. कोई बोल रहा है इधर quadrant angle, an angle is said to be quadrant angle if the terminal side coincide with
one of the axis. कोई ये जो एंगल मुड़ रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये OP वो एक्स के साथ जुड़ जाएगा तब हम बोलेंगे टोटल क्वाड्रेटिक एंगल, क्वाड्रेंट एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट का टोटल क्वाड्रेंट एंगल कितना है 0 to 90 डिग्री। 90 डिग्री इज द टोटल फॉर ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट देयर आर 90 डिग्री एंगल्स। अभी देखो इधर में क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। If from any point P on the terminal side of an angle is standard position a perpendicular PM is drawn on the x-axis, then the right angle triangle OPM thus formed is called the triangle of reference of XOP. अगर हम लोग को इधर में POM ये जो एंगल है यहाँ ये ट्रायंगल बन गया ना, POM ये जो ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल हम लोग ले रहे हैं। So this is not very much required to us. अभी देखो हम लोग को जो जरूरत है सबसे ज्यादा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, हाउ टू मेजर द एंगल, एंगल को कैसे हम लोग मेजर करें। ठीक है, हेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम एंड अनदर फ्रेंच सिस्टम, अनदर इज सर्कुलर सिस्टम। सो देयर आर 3 types of the measurement of the angle. One is English system, another is French system, another is circular system. 3 तरीका का सिस्टम है जैसे हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 उसको कहते हैं इंग्लिश सिस्टम, नंबर 2 उसको फ्रेंच सिस्टम एंड नंबर 3 सर्कुलर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम, that is English system. In this system, a right angle is divided into 4 equal parts called degree. 90 equal parts. Total right angle means 90 degree. It is divided by 90 parts and each of them is called 1 degree. तो इंग्लिश सिस्टम में एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है डिग्री, उसको सिंपल ऐसे लिखता है 1 पावर में स्मॉल 0 इज यूज्ड टू डिनोट द 1 डिग्री। तो 90 इक्वल पार्ट करते हैं एक एक राइट एंगल को। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर हम लोग 90 इक्वल पार्ट करेंगे तो जो भाग आएगा वो एक भाग को हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड द इंग्लिश सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। Thus 1 degree is 1/90th part of the right angle. Degree is divided into 60 equal parts. So one right angle is divided 90 equal parts, that is called degree. Now 1 degree also divided equally 60 parts. So 1/60th part of 1 degree is called 1 minute. जो 1 डिग्री हुआ वो जो 1 डिग्री का एंगल है उसको हम लोग फिर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर 60 इक्वल पार्ट में उसका जो एक पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे मिनट, उसको 1 मिनट कहते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। देखो मिनट का सिंबल होता है सिंगल डैश, जैसे फुट का सिंबल हम लोग देते हैं वैसे फुट का सिंबल। नाउ जो 60 मिनट्स में 1 डिग्री हो गया, जो एक एक मिनट है कोई 1 मिनट को फिर से हम 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तब वो जो पार्ट आएगा एक एक पार्ट उसको 1 सेकेंड कहता है। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। जो सेकेंड्स है हम लोग का ये इंग्लिश सिस्टम में उसका ये है, जैसे इंच को हम लोग लिखते हैं ना 2 पार्ट, दिस इज द सिंबल ऑफ सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से क्या हुआ 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू राइट एंगल। दिस इज द ब्रिटिश सिस्टम। इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी? समझ में आया सभी को? इधर में साफ लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. अभी हम लोग फ्रेंच सिस्टम देखेंगे, सेंटेस्टिमल सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये फ्रेंच सिस्टम अभी एबोलिश हो गया, तो लेफ्ट दिस, ये फ्रेंच सिस्टम अभी एबोलिश हो गया, ये सिस्टम अभी नहीं है, तो इसको छोड़ दो। जैसे फुट पाउंड सेकेंड वो एबोलिश हो गया, इसको छोड़ दो, अननेसेसरी वी लोग we are not hesitating ourselves. Then we are going for circular system. It is very
very much popular system. This is circular system. Look at here. यहाँ पे हम लोग एक सर्किल लेते हैं. एक सर्किल में कितना डिग्री होता है टोटल? एक सर्किल 360 sir. 360, sir. Okay, thank you. So in this system the unit of the measurement is radian is defined below. यहाँ पे जो इंग्लिश वाला में था उसमें डिग्री था, यहाँ पे है रेडियन, उसका सिंबल है सी, स्मॉल सी. 1 रेडियन रिटन एज 1 अपर केस सी. तो ऊपर में हम लोग सी लिखेंगे. सी मीन्स रेडियन is the measurement of an angle subtended at the center of the circle by any arc of the length equal to the radius of the circle. यहाँ पे सर्कल एक लिया है हम लोग जिसका रेडियस है OA. O इज द सेंटर. OA से OP तक हम लोग एक आर्क, देखो ये PA एक आर्क है ना. आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है. दिस इज आर्क. PA इज द आर्क ऑफ सम पार्ट. तो कंसीडर द सर्किल ऑफ रेडियस r. इफ वी से दैट, हम लोग अगर लेंगे जो ये OA है इसका लेंथ है स्मॉल r which is the radius of the angle, radius of the circle. Radius r having center at O. O सेंटर है. Let A be a point on the circle. A एक पॉइंट ले लिया हम लोग सर्कल के ऊपर. राइट. नाउ कट ऑफ एन आर्क AP. यहाँ से हम लोग एक AP जो ये है आर्क है इसको कट कर लेंगे. whose length is equal to the radius r. तो OA और PA ये दोनों का, देखो ये तो टेरा है ना. अगर मान लो ये तार का बना हुआ है, ये टेरा पार्ट को हम लोग उसको सीधे कर सकते हैं. आफ्टर कटिंग दिस P and A, ये आर्क पार्ट जो रहेगा उसको हम लोग सीधे कर सकते हैं. उसका लेंथ भी ले सकते हैं. उसका लेंथ और ये OA इसका लेंथ सेम होना चाहिए. दैट इज द वे. समझ में आया? यहाँ से जो PA है that is the bent edge part, that is R. If we take this PA as into the straight line and take the measurement of the length of PA, then the length of the PA and OA will be equal. OA का और PA का length अगर equal होगा. Now cut off an arc AP whose length is equal to the radius R of the circle. Then by the definition of the measurement of AOP is equal to 1 रेडियन. समझ में आया कौन सा चीज 1 रेडियन होगा? यस सर. हम लोग Yes, sir. रेडियस है, Yes sir. इसका जो रेडियस है उसका समान करके कोई एक आर्क ले लेंगे. ठीक है, जिसका लेंथ भी OA का इक्वल होगा. देन तब जो एंगल बनेगा उसमें वो एंगल को हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे. रेडियन का सिंबल है अपर केस P. Since radian is chosen as the unit of the measurement of an angle, therefore it should be a constant quantity ना. ये constant ही होना चाहिए. Unit of the measurement of an angle, therefore it should be constant quantity. Thus we shall show the following two theorems. Radian is a constant angle. ये theorem हम लोग को शो नहीं करना है, छोड़ दो. ठीक है. रेडियन और डिग्री का अंदर में जो हम लोग का ये है क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, दैट विल बी वेरी मोर प्रिसाइज टू अस. सो वी आर गोइंग फॉर दैट वन. ये जो थियरम है, थियरम हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम लोग को प्रॉब्लम करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. डिग्री क्या होता है? जो ब्रिटिश मेजरमेंट प्रोसीड्योर था ना, उसमें डिग्री था एंगल का यूनिट. और ये है सर्कुलर सिस्टम, इसका ये है रेडियन, यूनिट है रेडियन. अभी हम लोग को देखना है जो डिग्री और रेडियन में उसका कन्वर्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं. दैट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R. यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O है एंड रेडियस OA इज द रेडियस. इसका रेडियस का जो लेंथ है दैट इज R. हम लोग यहाँ से एक आर्क कट लिया PA, उसका भी लेंथ R होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेडियन. अभी हम लोग जो रेडियन का डेफिनेशन पढ़े हैं उसमें क्या बोला था, ये जो OA होगा उसका लेंथ के समान होगा ये PA का लेंथ.
तब जो एंगल बनेगा उसको हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे। ये था ना वहां पे। और अभी देखो अगर हम लोग इधर में ओ बी ले लेता है, देन ए बी, टोटल ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर होगा ए बी ना, समझ में आ रहा है बाबू? Yes, sir. यस सर। ए बी Yes, का sir. डायमीटर, तो ए बी बाइपार्टेड द सर्कल इनटू द टू सेमी सर्कल ना। ए बी दोनों हाफ में इसको डिवाइड किया है टोटल सर्कल के। अपर पार्ट वन सेमी सर्कल, लोअर पार्ट अनदर सेमी सर्कल। और अभी हम लोग को पता है डिग्री में जो स्ट्रेट लाइन है उसका अंडर का एंगल कितना होता है। स्ट्रेट लाइन का अंदर जो एंगल होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। 180 degree, sir. 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। सो अभी देखो, कंसीडर ए सर्किल विथ सेंटर O and the radius R. Let A be a point on the circle, join OA and cut off an arc OP. Arc OP on the length equal to the radius. Actually इधर में OP नहीं होगा, AP होगा। AP on the length equal to the radius of the circle. Then AOP equal to 1 radian. AOP ये 1 radian है from the definition of radian। ठीक है। अभी इसको हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं बी तक। 1 रेडियन प्रोड्यूस हुए मीट टू द सर्कल बी, बी तक मीट कर देंगे। तो ए ओ बी इसका क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, दैट इज 2 राइट एंगल। उसका मतलब 180 डिग्री होगा। वी नाउ दैट द एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंड टू द देम। देखो AOP बाई AOC, AOP बाई AOC कहाँ चला है बाबू, ये तो नहीं होना चाहिए, POB होना चाहिए। ओके, RKP बाई APB, दोनों आर्क का जो लेंथ होता है उसका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। AOP बाई AOB होगा, ये AOC लिखा है, AOB होगा। राइट, ये समझ में आ रहा है? दोनों जो एंगल है, वन एंगल है AOP, अनदर एंगल है AOB, स्ट्रेट एंगल। तो ये AOC नहीं AOB होगा। इज इक्वल टू, इधर में आर्क है AP और वहां पे है APB, तो AP APB। तो इधर पे AP जो सर ये तो कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, ये सर ये जो गलत लिखा है तो कंफ्यूज नहीं करेगा सर हम लोग को? तो अभी तो हम बोल दे रहे हैं, तुम लोग इधर पे नोट डाउन कर लो, तुम लोग नोट डाउन कर लो। एक्चुअली ये मैंने नहीं बनाया, हम लोग को एक्चुअली मेरे पास ये सब है ही नहीं कुछ, किसी बुक से लिया है। अभी हम देख रहे हैं इसमें गलती दिया है। ठीक है, तुम अभी इसको लिख लो, तुम्हारे पास पेन और कॉपी है ना, पेन कॉपी में लिख लो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होगा, इसलिए ना हम बोल देगा। AOP जो है AOP बाई AOB, नॉट AOC। देखो यहाँ पे C कुछ है ही नहीं, तो C कहाँ से लाएगा ना, है कुछ? Sir, your voice is not clear. AOB जो एंगल है, स्ट्रेट एंगल AOB, ये देखो ये जो AOB है, AOB एंगल है ना, दोनों एंगल को देखो, एक है AOP एंगल कहाँ से आया, यहाँ पे AOP इक्वल टू 1 रेडियन, और AOB यहाँ कहाँ से आया, ये है AOB इक्वल टू 2 राइट एंगल। ये जो दोनों एंगल है, दोनों एंगल और दोनों आर्क, यहाँ पे एक आर्क है AP और यहाँ पे एक आर्क है APB। ये दोनों आर्क का रेशियो इक्वल होना चाहिए, दोनों एंगल और दोनों आर्क का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे दोनों एंगल है, वन इज AOP, अनदर इज AOB, नॉट AOC। ये दोनों का रेशियो लिया, वहाँ पे दोनों आर्क क्या होगा, AOP जो एंगल है उसका रिस्पेक्ट में आर्क क्या है, AP, इजंट इट, वो ले लिया। और APB इसका जो टोटल आर्क है क्या होगा, पाई आर। कैसे हुआ पाई आर? सर्किल का जो ये सरकमस्टेंसेस है, क्या होता है सर्किल का सरकमस्टेंसेस, अगर आर उसका 2 pi r, sir. 2 pi हाफ हो गए सर। तो APB है हाफ सेमी सर्किल, तो उसका क्या होगा, पाई आर, है ना? Yes, sir. तो इधर पे जो आर्क APB है वहाँ पे हम लोग पाई आर लिखे हैं, और AOP तो जो है हम लोग लिख दिया, और इधर में
AOC नहीं AOB होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, तुम लोग को पास अगर पेन कॉपी है तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ा ठीक कर लो। एंगल AOP बाई AOB, नॉट AOC। तो AOB जो है उसका एंगल टोटल 2 स्ट्रेट राइट एंगल, दैट इज पाई इंटू 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री होगा। ओके, तो AOP इक्वल टू 2 राइट एंगल, इधर में देखो R कट जाएगा, 2 राइट एंगल बाई पाई। 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री बाई पाई। तो 1 रेडियन का मतलब होगा 180 डिग्री बाई पाई, isn't it? 180 डिग्री बाई पाई इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। लुक एट हियर, इज दिस अंडरस्टूड? ये समझ में आया? यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया हुआ है ये समझ में आया तुम लोगों को? अगर नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया बोलो। सर 1 रेडियन के बाद एक बार बता दें सर, 180 डिग्री अपॉन पाई। हाँ, AOP का मतलब क्या था, 1 रेडियन, उसका जो डेफिनेशन था उससे 1 C लिख दिया। और 2 राइट एंगल, राइट एंगल का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री, 90 इंटू 2 दैट इज 180 डिग्री। और यहाँ पे जो पाई था वही पाई लिखा हुआ है इधर, वहाँ पे जो पाई था। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर पे क्या आएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री ना, पाई C इक्वल टू 180 डिग्री, 1 इंटू पाई दैट इज पाई, पाई C इक्वल टू 180 डिग्री। So this is the relation between circular system or degree and radian actually. British system and circular system. This is the relation. Pi radian equal to 180 degree. This is the relation. ठीक है? तो हम लोग को ये चीज हमेशा याद रखना है। इधर में जो C है ना, कहीं कभी कभी रेडियन में ये जो C लिखते हैं, C नहीं लिखने से भी चलेगा। रेडियन इट इज क्वाइट अंडरस्टूड, इट इज रेडियन। तो रेडियन जब हम लोग ये करेंगे तो उसमें C अगर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है। अगर तुम C नहीं भी लिखोगे तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। देखो जैसे 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, 30 डिग्री का मतलब देखो इधर में लिखा हुआ है, देखो 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब पाई रेडियन बाई 180, पाई बाई 180। तो 30 डिग्री का क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 30 दैट इज पाई बाई 6 रेडियन। इधर पे देखो रेडियंस लिख दिया। तुम C लिखोगे तो रेडियंस मत लिखो, अगर रेडियंस लिखोगे तो C मत लिखो, अगर C लिखो तो रेडियन मत लिखो। So if you not write that C or any radian then also it is okay. अगर तुम C और रेडियन कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी ये ओके है। It's quite understood and it is the main theorem. ठीक है, तो अभी डिग्री से हम लोग रेडियन में चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम का रिलेशन ये है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। वहाँ से हम लोग यूनिटरी मेथड से अगर डिग्री दिया है तो रेडियन में लाएंगे, अगर रेडियन दिया हुआ है तो डिग्री में लाएंगे। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आई थिंक इट कुड बी डन बाय यू पीपल ना, तुम लोग कर सकते हैं ना ये सब? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. तो हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। हाँ, इधर में कुछ डिग्री मिनट भी है। और एक थिंग, तुम लोग का कोई LMS वगैरह कुछ है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह कुछ है? तुम लोग को नोट्स वगैरह कहाँ पे टीचर लोग अपलोड करते हैं? सर ऑफिशियल ग्रुप में। हाँ हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में? ऑफिशियल ग्रुप में सर हम लोग, हाँ व्हाट्सएप का हम लोग का एक तो ऑफिशियल ग्रुप है, उसी में। ठीक है, मेरे पास जो चीज़ है ना, हम तुम लोग का अनुभव सर जो है उनके पास हम भेज देंगे, सर अकॉर्डिंगली तुम लोग को सप्लाई कर देगा। ठीक है,
ओके सर। तुम लोग को Okay, sir. EMS नहीं है? Pardon? I'm not hearing you. क्या सर? हाँ तो बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं, सुना ही नहीं दे रहा था। सर आप क्या बोल रहे हैं वो हम लोग को सुनाई नहीं रही है। LMS बोल के कोई पोर्टल है जहाँ पे तुम लोग का जो क्लास करते हो, अटेंडेंस वगैरह देते हो, ऐसा कुछ है? नो सर। नहीं है तब ठीक है, हम जो नोट्स वगैरह है हम तुम्हारा आनुविक सर को हम दे देंगे, सर तुम लोग को अकॉर्डिंगली दे देगा, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है ना? ओके सर। तो नो सर। रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम, ये इसको छोड़ दो, एकदम छोड़ ही दो इसको। अच्छा और एक बात बताओ हमको, तुम लोग का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ऑनलाइन होगा। Online होगा sir. ऑनलाइन होगा सर। एग्जाम कब से? ऑनलाइन होगा। अच्छा एग्जाम कब से है तुम लोगों का? 15 से सर। 15 May sir. ओके, इन बिटवीन तुम 15th लोग को में। क्या क्या हुआ हमको थोड़ा बताओ ना, मैथ में हम जो देखे हैं तुम लोगों का है, एक मिनट हमको फिनिश करने दो, उसके बाद हम तुम लोग से पूछेंगे। हम जो देखे हैं उसमें अलजेब्रा है, समथिंग एक दिन हुआ था। इसमें ट्राइगोनोमेट्री है, एज वेल एज देयर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, ये ये तीनों है ना तुम लोग के सिलेबस में? यस सर, यस सर। इसमें क्या क्या चीज तुम लोग को हो गया, वो तुम मुझे पहले बताओ। सर बाइनोमियल थ्योरम सर। हाँ बाइनोमियल थ्योरम का बाइनोमियल थ्योरम का सिर्फ एक क्लास हुआ था, वो भी सिर्फ इंट्रोडक्शन सर। बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन हुआ है सिर्फ। अलजेब्रा का व्हाट्सएप हो गया, और अलजेब्रा का क्या क्या हुआ तुम लोगों को? नहीं सर, सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम हुआ और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम हुआ सर। सिर्फ बाइनोमियल ही हुआ है अलजेब्रा का? हाँ, सिर्फ एक ही चैप्टर सर, हाँ उसका इंट्रोडक्शन सिर्फ हुआ। इंट्रोडक्शन था। Actually, I have got the information. Your algebra part is over. I have got the information. Your algebra part is over. So I am going for your trigonometry. Don't worry. There is a less of the time. If I take some classes out of the track, that is the out of your total period time. Are you okay to take that class? अगर हम एक्स्ट्रा कोई क्लास लेना चाहते हैं तुम्हारा कॉलेज का जो टाइम है उसके बाहर में, उसमें तुम लोगों का कोई दिक्कत है? No sir. नो सर। एक्चुअली नो सर। का सिलेबस बहुत ज्यादा बाकी है, उसमें अगर यस सर। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा, अगर सूटेबल है तो देन आई कैन मैनेज। दिक्कत नहीं है? ओके ठीक है, चलो हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं। सब एग्जाम्पल देखो, इधर में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम लोग के लिए, Hello sir. Excuse me sir. बोलो। सर एक क्वेश्चन सर, एक बात बोलना था सर। 12 PM से सर हम लोग का नेक्स्ट क्लास है सर, रत्नेश सर का ईटी का। 12 PM से ना? यस सर, अभी 4 4 minutes मिनट to go बाकी सर। है। ओके सर। So find the degree measure corresponding to the following radian measure. 2 pi by 15 रेडियन, इसको हम लोग डिग्री में लिखेंगे। क्या होगा देखो सॉल्यूशन में है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू दिस, तो 2 पाई बाई 15, तो इसको 2 पाई बाई 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पाई बाई 15 रेडियन इक्वल टू 2 पाई बाई 15 इंटू 180 बाई 5, पाई पाई कट गया, 15 से ये करो 20 12 इंटू 2 24 डिग्री। यहाँ पे इसको बहुत सारे एग्जाम्पल है, आई थिंक इट विल बी डन बाई यू पीपल, तुम लोग कर सकोगे, है ना? ठीक है, क्या हुआ है तुम लोग को थ्योरी तो हम बता ही दिया, सम एग्जांपल इज आल्सो देयर, यू कैन फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ। इफ इट इज नेगेटिव एंगल इज गिवन, देन यू आर जस्ट पुटिंग द नेगेटिव मार्क, देन कैलकुलेटिंग बाय यूनिटरी मेथड। दिस इज द मेन थिंग, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। फ्रॉम हियर ऑल दोस थिंग विल बी कमिंग। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है। तुम लोग को पास कोई 11th स्टैंडर्ड का बुक है?
Yes, sir. RS Agarwal, sir. RS Agarwal, हाँ, Yes, sir. RS Agarwal या RD Sharma, you otherwise they can name मेरा वाला तभी से चले ठीक है just any of the book, right? You can find it out. तो आज बहुत जल्दी हमको क्लास लेना पड़ा, बहुत some minutes you have to wait there. तुम लोग को और कब तुम लोग का कोई एक हमको व्हाट्सएप करके तुम लोग का जो ये है रूटीन है हमको भेज सकते हो, कब कब क्लास है तुम लोग का मैथ का है, किसी के पास रूटीन? Yes, sir. तो Yes, sir. I have, sir. can I give you the WhatsApp number? Then you can send me all those things which are required to you. अच्छा ओके, सुनो बाद में हम एनिमेटर से बात कर लेंगे. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. आर्क का लेंथ हम लोग को बनाना है. यहाँ पे सब किया हुआ है, हम पहले तुम लोग को दे रहा है. अगर तुम लोग का दिक्कत होगा तो हम हमको बोलो, हम करा देंगे. आज के लिए मेरे पास व्हाइट बोर्ड भी नहीं है जो हम करा सकेंगे. तो नेक्स्ट क्लास से अलग क्लास होगा, उसमें पीपीटी वगैरह होगा. ठीक है? क्या हुआ बच्चे, तुम लोग समझ क्यों हो गया है? लग रहा है मेरा क्लास तुम लोग ओके सर. समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ सर, कुछ कुछ दिक्कत सर. कहाँ पे हो रहा है वो भी तुम लोग हमको बोलो, नहीं तो हम कैसे करेक्ट करेंगे बोलो. सब कुछ हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज बैरियर. आई एम नॉट हिंदी स्पीकिंग पीपल. पहले ही हम बोल रहा है, इसमें हम मेरा ही दोस्त मानो तुम लोग कि हम नहीं कर पाएंगे. तभी जितना हो सके हम कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा हिंदी पे हाथोगे मत. ठीक है? ये होना, ठीक है सर. अगर तुम लोग हंसोगे तो हम हिंदी बोलना ही छोड़ देंगे. हेलो सर. हाँ बोलो. सर बोले कि ये जो थ्योरी पार्ट है सर, ये सब अभी हम लोग अगर छोड़ सकते हैं तो ठीक होगा सर. अभी एग्जाम आने वाला है तो सर अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले करवा देते तो. ओके, लेकिन देखो अगर जितना भी एग्जाम में. अगर तुमको थ्योरी पता नहीं होगा तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? यस सर, यस सर. वो बोले सर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है वही सिर्फ पढ़ाइए और ऊपर से खाली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब एग्जाम में आने वाला है वो सब तो करवा दीजिए. तुम लोग को एक ही थ्योरी पढ़ा है ना, और बाद बाकी सब छोड़ यस दो. हम जो बोल रहे हैं उसको सिर्फ नोट डाउन करो. हाँ, यस. ओके, डोंट वरी, इट विल बी ऑकर्ड. ठीक है, टाइम खत्म हो गया. तो आज के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. इधर पे जो नोट है मनोविक सर को दे देंगे, सर तुम लोग को देगा. अगर किसी में दिक्कत होगा सिर्फ प्रॉब्लम को तुम लोग फॉलो करो, अगर किसी में दिक्कत होगा तो तुम लोग पूछो हमसे. ठीक है? ओके, थैंक्स टू एवरीबॉडी. ठीक है सर. Thanks to everybody. So we are ending our meeting for today. Next week we will meet again. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. बाय सर. Bye.